Hello, Cadet Achal Singh. Heartiest congratulations to you on cracking another SSB. Thank you, sir. I would like to know your introduction. Please share with all YouTube viewers. Thank you, sir. My name is Achal Singh. I belong to Varanasi, but presently I am living in Lucknow. If I talk about my educational qualification, then I have completed my graduation from Lucknow University with a grade percentage that is 71%, and I have completed my 12th and 10th from Army Public School SPMA in Lucknow only. If I talk about my family background, my father is an ex-army man. My brother is doing BTech from Dehradun Institute of Technology, and my mother, she is a housewife. And I have completed my NCC from 101 UP Battalion NCC Mirzapur. And recently I have got my recommendation twice. First was from Bhopal, that is from 21 SSB board, and second was Allahabad, that is 34 SSB board. Okay. How you started your planning to join defense? When it was occasion, then like you started planning that one day you will be defense officer, because after completion of your graduation, every aspirant has various opportunities. How you opted your defense career? Because I remember when you joined Centurion Defense Academy, then you were preparing for NEET. Yes, sir. Then you came with us. जब आप मुझसे मिले तब आपने मुझे बताया कि सर नीट के अलावा मुझे ये भी एक करियर है. Yes. तो वो जो आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस आया, वो कहाँ से आया, किससे आपने बात किया? बिकॉज आपका फैमिली बैकग्राउंड भी, फादर आपके सर्विंग है आर्मी में एंड सी इज़ वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल. तो वो जो कंसीव हुआ एक आइडिया, वो कहाँ से हुआ? सर, इफ़ आई टॉक अबाउट कि वो पैशन कहाँ से है, दैट पैशन वॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बिकॉज माई फादर वॉज एन आर्मी मैन. सो वो चीज़ें मैंने देखी थी. ही वॉज फ्रॉम GD होती. देन व्हाई यू जॉइन नीट? सर, बिकॉज नीट वॉज, देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट कि आफ्टर 12th मैं अगर आर्मी में जा सकती हूँ, दैट इज़ ओनली वन वे इज़ थ्रू नीट, दैट इज़ AFMC, क्रैकिंग AFMC, दैट इज़ आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, एंड आई कैन बी अ मेडिकल डॉक्टर इन आर्मी. दैट वॉज फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज आफ्टर 12th सिर्फ वही एक ऑप्शन बचता है. बट आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक दैट. एंड जो सेकेंड ऑप्शन जो मैं अपने साथ लेके चल रही थी, दैट वॉज आफ्टर ग्रेजुएशन, जो मैं CDS क्लियर करके या आफ्टर NCC मैं जा सकती हूँ. सो फर्स्ट ऑप्शन जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, बट इन माई सेकेंड ऑप्शन आई वॉज एबल टू ग्रैब इट. सो दिस वॉज द सिनेरियो कि मैंने स्टार्टिंग से वो चीज़ें देखी, एंड इट वॉज प्री प्लान सिंस आई वॉज इन क्लास 10th, एंड आई डिसाइडेड कि आई टेक PCB and I'll crack NEET and go in AFMC Pune. But I was not able to crack it. But I've done that graduation from BSc, and then after BSc I've qualified. My another question is why you joined any institute, like you joined Centurion Defense Academy so late for your defense preparation, because many candidates, as you told that you are having childhood dream. Yes, sir. So why not from little early? Why not after 12th or when you were undergoing your graduation? Yes, sir. Sir, in graduation, frankly speaking, I had cycle, and the distance from my home is a little bit far, and that was also there that for cracking AFMC you have to get 60% above. एंड सर, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में डाला जाता है कि 60% अबव अगर आपके आ गए, इट मीन्स आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए. एंड वो चीज़ थी. सो मैंने पूरा फोकस किया कि मैं CDS के लिए प्लस AFCAT के लिए एलिजिबल हो जाऊँ फर्स्ट, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगी. तो आफ्टर गेटिंग माई ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन, मैंने थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देने से पहले मैं सेंचुरियन, मैंने सारी चीज़ें पता की थी, सारी चीज़ें प्लानिंग कर ली. उसके बाद जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ एंड मैंने ज्वाइन किया, ताकि मैं अपना फुल फोकस एक जगह दे पाऊँ और मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ. एंड दैट वाज द रीज़न कि आज मैं यहाँ पे हूँ. Okay, share your NCC training, what you have learned in your NCC, how you were motivated to join Indian Defence Forces and to prepare for SSB later on. NCC में और क्या चीज़ें सीखी? NCC में आप 3 years आपने complete training करी, you are having C certificate with Alpha grade? Yes, sir. Okay. Sir, in NCC, sir, I was very fond of wearing uniform. तो सर मेरे स्कूल में in 8th you can take NCC for 8th certificate. तो मैंने 8th में NCC A सर्टिफिकेट भी लिया. 8th and 9th क्लास में I've done my NCC. वहाँ सर I learned firing, drill and acclimatizing with the people and the camp in which you stay for 10 days, जिसमें आप
बहुत सारे हर्डल्स, लाइक आपको प्रॉपर खाना में भी उतना अच्छा ना लगे जो आपको घर पे मिलता है, बट आपको उसमें रहना है, फ्रेंड्स के साथ रहना है, सारी चीज़ें फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म करनी है, वो एक सोशल ग्रुप जो होता है वो मिलता है, प्लस आपको अपनी जो लाइक क्वालिटीज़ है वो दिखाने का मौका मिलता है कि हाँ आप यहाँ पे अपनी ये क्वालिटीज़ दिखा सकते हो। इफ़ इट कम्स टू स्पोर्ट्स, कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं उस 10 डेज़ के कैंप में जिसमें आप दिखा सकते हो। एंड व्हेन आई एंटर्ड इन ग्रेजुएशन, देन मैंने अपना कंप्लीट किया BNC। उसमें भी कैंप्स में सर बहुत सारे ऐसे रैलीज होते हैं जिसमें आई टुक पार्ट एंड लाइक फायरिंग में आई टुक पार्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिसमें नए नए फ्रेंड्स बनाए, उनसे उनकी लाइफ के बारे में उनसे चीज़ें सीखी, कुछ अपनी चीज़ें बताई। सो दिस वॉज द थिंग आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल एंड दैट वॉज अ सिनेरियो जहाँ पे मैं जाके लोगों से, नए नए लोगों से मिल भी रही थी और उनसे कुछ चीज़ें सीख रही थी एंड इट गेव मी अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो आई फील कि ये सारी चीज़ें मैंने सीखी NCC से। यहाँ मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जब कैंडिडेट्स NCC के हमारे पास आते हैं एंड दे से सर मुझे SSB की तैयारी करनी है, तो मैं पहले इंट्रैक्शन में उनसे पूछता हूँ कि आपने NCC में क्या सीखा, तो जवाब कुछ ऐसा ही होना चाहिए। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि NCC में आपने 3 इयर्स में क्या सीखा एंड नाउ हाउ यू आर मोटिवेटेड, बिकॉज एक तरीके से आप कॉम्बैट ट्रेनिंग कर चुके होते हैं और उसके बाद आपके लिए SSB प्रिपेयर करना। 10 साल पहले NCC और सैनिक स्कूल का जो वेटेज था SSB इंटरव्यू में, वो आज कंपेरेटिवली कम हो गया है। यस सर। उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि क्राउड एंड अवेयरनेस अबाउट SSB इंटरव्यू प्रोसीजर। अभी कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर्म ज़्यादा करते हैं, कैंडिडेट्स ज़्यादा पहुंचते हैं, और यहाँ भी मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि एक लिमिटेशन है SSB का कि बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है, बट उनको मैक्सिमम जो कैपेसिटी है अकोमोडेट करने की स्क्रीनिंग राउंड में, जिसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी बोलते हैं, वो लिमिटेड है। तो यही रीज़न है कि आप 400 के क्राउड में जाते हैं, फिर भी आपका स्क्रीनिंग जो मैक्सिमम नंबर है उनको उतना ही करना होता है। जैसे आपका रिजल्ट क्या था स्क्रीनिंग का इस बार वाले में? सर इस बार 450 रिपोर्टेड Okay. एंड 99 गॉट स्क्रीन्ड। ओके, एंड इससे पहले वाले में जब आप रिकमेंड हुए थे तब? सर उसमें याद है या नहीं याद? यस सर, याद है सर। उसमें सर 350 रिपोर्ट किए थे एंड ओनली 40 गॉट स्क्रीन्ड। उस वक्त जो रेशियो था सर वो बहुत ही कम था, उसमें से 10 गॉट रिकमेंडेड, बट यहाँ सर 99 में से 9 गॉट रिकमेंडेड। चलिए, बहुत सारे व्यूवर्स इस टॉक शो को देख रहे होंगे, अब मैं उनके भी काम की बात करता हूँ। आपने भोपाल SSB भी क्रैक की। भोपाल में क्या बोर्ड था आपका? 21 एंड हियर इट वाज इलाहाबाद में 34। Yes. दोनों में आपकी स्ट्रैटेजी कॉमन क्या थी? कौन से ऐसे सेगमेंट में आपको कॉमन क्राइटेरिया इज ऑब्वियसली इट इज़ कॉमन, बट आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ कॉमन थी जो दोनों में काम आ गई और आपको बाद में लगा यस मेरी ये स्ट्रैटेजी काम आई? सर एक तो सर चेयरफुलनेस, Okay. जो मुझे लगा कि कॉमन जो मेरी भोपाल एंड इलाहाबाद में कॉमन थी, वो तो हर कि जगह जितना- वो तो हर जगह है। सर। यहाँ भी है आपका सर cheerfulness। मेरा चेयरफुलनेस हमेशा है सर। वो चीज़ मैंने देखी कि चेयरफुलनेस और जितने ज़्यादा फ्रेंड्स आप बनाते हो, वो SSB में जो 5 डेज प्रोसेस में आप जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हो, जितने लोगों से बात चलिए, नंबर 1 हो गई आपने चेयरफुलनेस, नंबर 2 सर फ्रेंड्स, So many friends। आपने वहीं बनाया? यस सर, उनसे कॉन्वर्सेशन किया और हेल्दी कॉन्वर्सेशन। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव मेड हियर, SSB इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन है, तब आपने क्या जवाब दिया? सर मैंने बोला कि आई हैव मेड एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड दे आर वेरी गुड। मैंने उनसे कई सारी चीज़ें सीखी हैं, कई सारी अपनी दी हैं, एंड वी हैव प्लेड बास्केटबॉल, सारी चीज़ें सर। डिस्कशन जो नाइट एज बास्केटबॉल इज योर हॉबी गेम, आई Yes, रिमेंबर। ओके, तो सर मैंने तो वहाँ कुछ आपको खेलने का टाइम मिल जाता था इवनिंग में? यस सर, वहाँ पूरा टाइम आपके पास रहता है। आपको 2 बजे तक आप बिजी रहते हो, 2 बजे के बाद यू हैव इनफ टाइम टू प्ले। In both places, In both places. you involved in playing basketball. Basketball, You yes. played basketball. Yes, sir. Okay, ये SSB का जवाब है या सच में आपने खेला? सच में खेला मैंने। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप हॉबी को 5 डेज के प्रोसीजर में कितना यूटिलाइज करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज तब आपका नेचुरल परफॉर्मेंस आता है। अगर आपने हॉबी में गेम ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेशन इन गेम्स में लिखा हुआ है कि दैट यू हैव प्लेड बास्केटबॉल लेवल, दैट कैन बी अप टू एनी ऑफ द लेवल। आप कॉलोनी लेवल पे खेल रहे हैं, आप स्टेट लेवल पे, एरिया लेवल पे, कमांड लेवल पे खेल रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खेल रहे हैं। तो ये आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे जब आपको 2 घंटे का टाइम मिला, बिकॉज आपका हॉबी गेम है, तो Yes. 2 घंटे में भी आप वहाँ पे सिंथेटिक कोर्ट होता होगा। Yes. सिंथेटिक कोर्ट है ऑब्वियसली, सिंथेटिक कोर्ट के बिकॉज आप डिफेंस के कहीं भी जाएंगे तो आपको कोर्ट अच्छा मिलेगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया। सर जब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपका किसी गेम में इंटरेस्ट है और वो कोच सामने है, तो ऑब्वियसली यू मूव कि हाँ मैं खेलूँगा। यहाँ से पता चल जाता है कि ये आपका हॉबी गेम है भी या नहीं है। यस। ओके फाइन। और आपने अभी मैं और भी यहाँ पे व्यूवर्स के सामने आप ये शेयर करिए कि आपको और क्या चीज़ें कॉमन लगी दोनों एसएसबी में, जो आपकी स्ट्रैटेजी थी। अभी आपने स्ट्रैटेजी नहीं बताई है। और क्या? सर प्रैक्टिस। Yes. जो हर चीज़ में कॉमन थी कि मैंने भोपाल जाने से पहले भी मैंने रिगरस प्रैक्टिस की। एंड प्रैक्टिस ऐसी नहीं कि लाइक जो रट्टाफिकेशन होता है, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिस। अपने आप को हमेशा इवॉल्व किया कि मैंने कितना खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया है, कितना खुद के बारे में जानती हूँ। ये चीज़ मैं भोपाल जाने से पहले मैंने किया था, उसका रिजल्ट मुझे मिला। ये चीज़ मैंने अभी किया था, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 1.5 मंथ मुझे लगे थे इन सब चीज़ों में करने में। रिगरस प्रैक्टिस, डेली 10 WATs लिखना, दैट वाज माय वन प्रैक्टिस कि मैं पिछले टाइम पे भी लिखती थी, इस बार भी लिखती थी। 10 to 20 SRTs करना, दैट वाज माय इन माय शेड्यूल। वो सारी चीज़ें मैंने सेम की एंड दिमाग में था कि शायद मैं वो सेम करूँ तो मैं इस बार भी निकल जाऊँ। तो मैंने वो चीज़ें की एंड दैट फील्स कि हाँ वो चीज़ें मेरे लिए बेनिफिशियल हुई। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि दैट वाज कॉमन एंड बेनिफिशियल। तो आपने आर्मी की टैगलाइन को पहले ही फॉलो कर लिया, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। यू हैव स्टार्टेड डूइंग रिगरस ट्रेनिंग एंड हार्ड वर्क। Yes. ओके। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू नो योर मेमोरेबल ओकेजन इन बोथ एसएसबी प्लेसेस। आपका 5 डेज में सबसे मेमोरेबल टाइम क्या था? और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में जब आपने एसएसबी की तैयारी करी, बिकॉज आप तो काफ़ी समय तक से हैं, बिकॉज 1 साल आपका होने वाला है। हो गया 1 साल? हो गया। 1 साल हो गया। तो यहाँ पे सबसे मेमोरेबल आपका टाइम क्या था? सर इफ़ आई टॉक अबाउट SSB टाइम, सर भोपाल में जो सबसे मेमोरेबल था सर, दैट वाज सिटी जब हम घूम रहे थे, दैट वाज इन अ वैन जिसमें हम सारे 10 to 12 गर्ल्स थी। वो सब एक साथ उन्होंने हमने पेमेंट किया एंड देन पूरा सिटी हमने पूरा घूमा, पूरा एंजॉय किया वहाँ। देयर वाज ट्राइबल म्यूजियम और फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से मिंगल अप हुए। जब आपको 5 डेज मिलता है तो आपके पास एक ही काम होता है, फ़ोन नहीं होता है, एक ही काम होता है फ्रेंड्स से मिंगल अप होना। वहाँ जब हम होते हैं तो वहाँ अपर लेक, लोअर लेक एंड ट्राइबल म्यूजियम और योद्धा स्थल, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थी जहाँ हम घूमे। एंड सर बेस्ट थिंग, हमारे पास मोबाइल नहीं और हमारे पास मेमोरीज जो हमारे माइंड में है। सो दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल थिंग कि हाँ हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, बस वो माइंड में है बट बहुत अच्छी हैं। सो दैट वाज फ्रॉम भोपाल SSB। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इलाहाबाद SSB, सो द मोस्ट मेमोरेबल इज़ कि जब हम लोग फ्री हो जाते थे तो सर इस टाइम पे कर्फ्यू लगा हुआ था, तो वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट। बट एक दिन हमें ऐसा टाइम मिला, तो सो वी वेंट टू मैगी पॉइंट। हम सारे फ्रेंड्स वहाँ गए एंड वी हैड मैगी एंड रिलैक्स एंड चाय एंड अ मैगी। सो वी हैड रिलैक्स टाइम जहाँ पे हमने अच्छी हवा देखी और ठंडियाँ चल रही थी, उसके मज़े लिए। दैट वाज अ मेमोरेबल टाइम। एंड इफ आई टॉक अबाउट सेंचुरियन एकेडमी, तो सर यहाँ तो n नंबर ऑफ मेमोरेबल थिंग्स है मेरे पास। लाइक सर यहाँ पे मुझे कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिसमें आपने मुझे खुद कहा कि वो लाइन मुझे याद है कि तुमने आज तक नहीं किया, अब करो। दैट लाइन मोटिवेटेड मी एवरी टाइम। मुझे भी याद है। हाँ सर, मैंने हर बार जब भी आपको बोला सर मैंने ये नहीं किया आज तक, बोले अब करो, और मैंने किया एंड आई फाउंड कि वो बहुत अच्छे वे में मैं उतना परफॉर्म कर सकती हूँ। मैंने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ को डिस्कवर किया। तो वो चीज़ें सर, यहाँ का जो मेमोरेबल टाइम बताऊँ सर, होली, लास्ट टाइम जो होली थी, दैट टाइम मैंने बहुत इन्जॉय किया। हम काफ़ी कम नंबर में गर्ल्स आई थी, बट सर वहाँ पे मैं वैसे ही फ्री टाइप रहती है एंड काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया था आपके साथ, सारे टीचर्स, फ्रेंड्स, सबके साथ डांस, गाना, मस्ती, वो और यहाँ का सर माहौल। इस बार में हम इससे भी अच्छी होली प्रोबेबली इफ यू आर हियर, अगर बिकॉज ट्रेनिंग से पहले अगर आप रहेंगे तो इस बार भी आप शरीक होंगे होली में, और हम पहले से भी अच्छी होली सेलिब्रेट करेंगे। ओके, इन वन सक्सेस पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इम्परेटिव। हर किसी की सफलता में जो उनके माँ बाप होते हैं उनका एक अलग हाथ होता है, बिकॉज जो कैंडिडेट होता है वो ट्रेनिंग तो अपने कॉलेज या अपने इंस्टीट्यूट से लेता है, बट जब वो घर वापस जाता है तो उसको इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ आपके फैमिलीज़ में कैसा इन्वायरमेंट और उनकी जो नर्चरिंग थी वो कैसी थी, जिससे आप यहाँ तक पहुँच पाए और आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो पाया? सर इफ़ आई टॉक अबाउट कि मेरे पेरेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट था, सर आई गिव देम 50% ऑफ ऑल माई डूइंग्स। क्योंकि सर अगर उन्होंने मुझे मोटिवेट ना किया होता या सपोर्ट ना किया होता तो आई नॉट बी देयर हियर। सर मेरी वजह से, आई से कि मेरे वजह से ही
My brother is in वो DIT. 50% indirectly 100% है. Yes sir, indirectly 100%, 50%. Because nurturing is important. आप Yes, यहाँ sir. से जो पढ़ के जा रहे हैं आपको वहाँ पे environment and everything. Yes sir. Okay. सर क्योंकि वहाँ वो एनवायरनमेंट मिला. मेरे पेरेंट्स बिकॉज ऑफ मी दे आर लिविंग सेपरेटली, बिकॉज नॉट सेपरेटली बट या सेपरेटली, बिकॉज माई फादर इज़ वर्किंग इन बिहार राइट नाउ, और ही हैज़ प्लेस कि मम्मा को रख सकते हैं. He is serving in Indian Army presently or सर प्रेजेंटली सर ही इज़ एन एक्स आर्मी मैन, बट प्रेजेंटली ही इज़ अ CSO सिक्योरिटी ऑफिसर इन हरिनगर बिहार. सर वहाँ पे दे हैव प्लेस, ही हैज़ प्लेस, बट मॉम बिकॉज ऑफ मी शी इज़ स्टेइंग विद मी. माई ब्रदर इज़ इन देहरादून एंड लगभग 1 साल सवा साल हो गया जिससे मेरी वजह से शी इज़ है, और मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट करना. जब भी मैं लो फील करना तो वो मुझे सपोर्ट करती. इट्स ओके, बिकॉज आफ्टर मेरिट गेटिंग मेरिट आउट आप लो हो जाते हो, आपको चीज़ें दिखती हैं, बट वहाँ जब तक आपके जो बैक बिल्डर्स होते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स बोले, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर सही नहीं होते तो आप नहीं स्टैंड कर पाते. सो सर वहाँ उन्होंने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया हर चीज़ में. जो मेरी फैसिलिटीज़ चाहिए या कुछ भी चाहिए, दे वर ऑलवेज देयर कि ओके. और प्लस मेरे पास कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी. आजकल के यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल लाइफ में सर फाइनेंशियल होती है, बट मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं कि हाँ तुम्हें जॉब करना है कुछ करना है. सो दे हैव गिवन मी इनफ टाइम कि आप अपने जो एम है उसको पाओ, बिकॉज मेरा एम उनका खुद का भी एम है. सो दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट. तो आई विल गिव देम क्रेडिट कि हाँ आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ. मुझे याद है जब हम 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में सारे बच्चों की रिपोर्टिंग होती है, बट मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों से पहले उस दिन आपकी मदर सबसे पहले आ गई थी. Yes, sir. सो बाय दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ पंक्चुअल शी इज़, और वो कहीं ना कहीं उनके नेक्स्ट जनरेशन में उनके बच्चों में भी आ जाती है. तो वो बहुत ही क्यूरियस थी जानने के लिए कि आपका डांस परफॉर्मेंस था उस दिन. सो वो मेरे लाइफ का फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस जो मेरी मम्मा के सामने प्रेजेंट होने वाला था. Okay. तो आई वॉज नर्वस एंड शी वॉज ऑल्सो नर्वस कि कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे वरना बट आई वॉज नर्वस कि मुझे इतने लोगों के साथ, बिकॉज वहाँ 1000 तक के लोग होंगे, 1000 लोग प्रॉबेबली इतने लोग होंगे, बट मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था. मुझे लग रहा था आज मेरी मॉम के सामने मुझे परफॉर्म करना है. एंड शी वॉज हेयर एट 6 AM, तो वो बहुत जल्दी आ गई वो थी. सबसे पहले आ गए थे Yes, सारे sir. बच्चों में. और ये नर्चरिंग मिलना और ऐसी पेरेंटिंग मिलना अपने आप में एक असेट है. Yes, sir. जो आपकी लाइफ I'm लॉन्ग lucky, आपके साथ sir. रहेगा. I'm very यस यू lucky. लकी ऑब्वियसली. नाउ आई वुड लाइक टू नो लाइक व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल SSB एस्पिरेंट्स. बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनकी SSB अभी हाल ही में होगी या वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टेज फर्स्ट में होंगे, उन्होंने अभी शुरू किया है. आप उनको एज अ होल क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एंड से कि उनकी तैयारी करने का एक पैटर्न क्या होना चाहिए? सर इफ़ आई टॉक अबाउट SSB तो बीइंग प्रैक्टिकल आई वुड से कि गो फॉर गाइडेंस. एक सिंपल सी बात है कि अगर हम एक सिंपल वीकली टेस्ट भी देने जाते हैं तो बिना पढ़े नहीं जाते हैं. वी नो कि अगर बिना पढ़े जाएंगे तो वी वुड फेल इट. बट अगर आप सोच रहे हो SSB सिर्फ बिना गाइडेंस के आप चले जाओ तो भी प्रॉब्लम है. आप गाइडेंस लेके जाओ, बिकॉज वहाँ पे भी जो आपको जज कर रहे हैं दे नो कि गाइडेंस हर चीज़ में ज़रूरी है. इसी को सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं. अगर आप अवेयर नहीं हो कि क्या प्रोसीजर है, क्या वो डिमांड कर रहे हैं, तो फिर आप अवेयर नहीं हो, फिर प्रॉब्लम ही वहाँ से अराइज हो जाती है. तो आप गाइडेंस लो, फिर उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें अगर आ जाती हैं, फिर सर किसी चीज़ को प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो आई फील कि जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें अपने अंदर इनकलकेट करें. और किस प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं, मतलब सर कैसे प्रैक्टिस करें वो? अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, अगर आप इनिशिएटिव हो और आपको मौका मिल रहा है और आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है. अगर आप वहाँ मौका मिल रहा है, आप डर रहे हो, बट फिर भी आप इनिशिएट करो. थोड़ा गड़बड़ होगा बट करो. जब आप करेंगे तो सर वो क्वालिटीज़ अपने आप इनबिल्ट होती जाएंगी हमारे अंदर. सर ये इस टाइप की जो क्वालिटीज़ है ये हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं. इनबिल्ट करिए एंड देन फिर आप प्रैक्टिस, जो मेरे लिए कहते हैं कि प्रैक्टिस और फ्रेंड्स के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा. आई फील कि SSB क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें. और खुद को जाने, सबको जाने, तो वो सेल्फ अवेयरनेस कहीं ना कहीं वहाँ से आती है, बहुत ज़्यादा आती है. तो ये मेरे लिए मैसेज होगा फॉर ऑल SSB एस्पिरेंट्स. What she's saying is absolutely correct because वो हमने यहाँ देखा. मुझे लग रहा है कि पिछले 1 ईयर में शायद ही आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम मिस किया होगा यहाँ का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है. कोई वीकली मॉक टेस्ट मिस नहीं किया. इफ़ सी नीड्स इन लीव देन सी प्रायर गॉट लीव अप्रूवल
और बहुत ही कम ऐसे ओकेजन्स रहे हैं जब इसने लीव लिया है। और शी इज़ हैविंग गुड नंबर ऑफ फ्रेंड सर्कल। एनडीए के कैंडिडेट्स जो एनडीए के बच्चे हैं वो इसको दीदी बोलते हैं। Yes. सारे कोई मुझे लग रहा है सारे बच्चे आपको जानते हैं। Yes, एमएनएस बैच के जितने बच्चे हैं सब आपको जानते हैं। Yes, sir. तो ये कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर पैटर्न है जो एसएसबी में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है वो आपका पहले से ही दिख जाता है। अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने एसएसबी की तैयारी यहाँ पे कैसे ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट क्या क्या आपने किया, और यहाँ की तैयारी जब आपने सेंचुरियन में डे 1 में रिटर्न के लिए आप आए, फिर बाद में आपने एसएसबी बैच ज्वाइन किया, जब आपका एनसीसी एंट्री आया, तो यहाँ की तैयारी आपके लिए कैसे हेल्पफुल थी और आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी थी? सर यहाँ की तैयारी साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू का आप यस सर। पहले साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो सर साइकोलॉजी में सबसे मेन चीज़ वो व्हाट आई फील कि स्टोरीज़ बनाना स्टार्टिंग की वहीं से होती है। सब मैंने पहले प्रैक्टिस किया बट स्टोरीज़ आपकी फर्स्ट में आपको दिमाग नहीं बनती है। सो मैंने आपसे भी चेक कराया कि सर क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। मैंने वो इम्प्रूवमेंट्स किए वो, और जैसे अगर आप सोशली अवेयर होते हैं, ये पता चला है कि सोशली अगर आप अवेयर होते हो तो आपके पास थीम्स ज़्यादा आती हैं, आपके पास एक्शंस ज़्यादा आते हैं, जिससे जो प्रॉपर गाइडेंस मुझे मिलती रही यहाँ सेंचुरियन से उसको मैं अप्लाई करती रही। इट्स नॉट कि मैंने सिर्फ सुना और मैंने छोड़ दिया। मैंने सुना, उसे ढूंढा कि इसमें और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, फिर उसे अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टोरी में मैंने उस चीज़ को माइंड में रख के देन उसको किया। तो ग्रेजुअली मेरी जो स्टोरीज थी वो अच्छी से अच्छी होती गई। एंड आपने हमेशा सजेस्ट किया कि अपने पास स्टोरीज का इतना कलेक्शन रखो ताकि आपका माइंड उस वे में वर्क करने लगे। ये सजेशंस यहाँ पे मैं कैंडिडेट्स को इस वजह से देता हूँ कि आपका ये अपना बैंक होता है। आप किसी बुक से, इंटरनेट से, यूट्यूब से अगर आप किसी की प्री कंसीव्ड या बोरोड आइडिया लेते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे सबको सब पता होता है कि ये मार्केट में घूम रही स्टोरी है, तो उस स्टोरी को असेसमेंट में जो हम मार्किंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, वो वैसे ही करते हैं। yes, सर आपने फर्स्ट डे क्लास में कहा था कि कोई भी बाहर की स्टोरीज मत पढ़ना, किसी दूसरे की स्टोरी अपनी स्टोरी बनाने के बाद ही सुनना। सर वो चीज़ें लिटरली वर्क किया, क्योंकि मैंने आज तक मैं बोली सर मुझे प्रैक्टिस करते हुए एक साल से ज़्यादा हो गया, बट मैंने आज तक मार्केट की एक भी स्टोरी नहीं पढ़ी, एक भी स्टोरी नहीं पढ़ी। मैंने अगर किसी फोटो पे, किसी पिक्चर पे अगर मैंने स्टोरी बनाई है, फ्रेंड ने भी बनाई है, तो पहले मैंने अपनी पढ़ी, अपनी बना दी, उसके बाद उसका सुना है, सो दैट मेरा कुछ साइकोलॉजी चेंज ना हो। यहाँ पे आप कैंडिडेट्स को ये भी शेयर कर दीजिए जो वीडियो इस टॉक शो को देख रहे हैं। मुझे याद है अभी इस वाले एसएसबी जाने से पहले जब आपने ब्लैंक स्टोरी का डिस्कशन क्लास में किया था, तो आपका ब्लैंक स्टोरी का थीम क्या था और आप क्या सेट करके गए थे ब्लैंक स्टोरी, और वो आपके पीआईक्यू से कैसे मैच कर रहा था? यस सर, इफ़ आई टॉक अबाउट ब्लैंक स्टोरी, सर मेरा ब्लैंक स्टोरी मेरे बास्केटबॉल से रिलेटेड रहती है, और वो मेरी पर्सनल लाइफ का एक सीन है, और ऐसे कि वो एक सीन है, उस सीन को मैंने अपने स्टोरी में डाला है, और मेरे पीआईक्यू से ऐसे मैच होता है बिकॉज इट इज़ माई गेम ऑफ इंटरेस्ट, तो वो पूरा कनेक्टेड होता है। प्लस वो मेरी जो लाइफ का एक सीन है, तो उसकी डिटेल्स मेरे को अच्छे से याद है, और वो उसमें मैं कनेक्ट करती हूँ, जिससे वो स्टोरी बहुत रियलिस्टिक हो जाती है। यहाँ आपने गेम को एक्सप्लेन कर दिया कि उस गेम में आपका परफॉर्मेंस कैसे था, yes, और लास्ट में आपको कैसे सक्सेस मिला, कैसे मैं उस गेम में इन्वॉल्व हुई, कैसे मैंने ग्रेजुअली इंप्रूव किया, और कैसे मैं उस गेम की वजह से मैं कैप्टन भी बनी। इन्वॉल्व जिसको पहले पसंद भी नहीं था, देखा भी नहीं था, बट इन्वॉल्व होना एंड देन ग्रेजुअली इतना अच्छा इम्प्रूव होना कि आप कैप्टन बन जाओ। ये आपने ब्लैंक स्टोरी रखी थी? यस सर, ये मेरी ब्लैंक स्टोरी थी। ओके, नंबर ऑफ एसआरटीज आपने क्या करी थी, कैसे करी थी? सर इसमें नंबर ऑफ एसआरटीज सर मैंने 52 किया, और एसआरटीज में सर जो यहाँ से मुझे गाइडेंस मिलती है, वो जो मुझे भी लगती है कि हाँ कहीं ना कहीं सही है। हमेशा आप गाइडेंस जो मिलती है उसे आप एनालाइज करते हो कि मेरे लिए सही है कि नहीं है, तो जो मुझे फील हुआ कि मेरे लिए बहुत सही है, तो मैंने सर यहाँ की गाइडेंस थी कि आप प्रॉपर रिस्पॉन्स लिखिए, किसी भी चीज़ को अधूरा छोड़ के वो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने सर प्रॉपर रिस्पॉन्सेस पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मैंने वो लिखा, एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट 52 एसआर। अब यहाँ अगर आप टॉक शो हमारा पहले वाला भी देखेंगे, और अभी जो 1 वीक पहले हमने यूट्यूब पे पब्लिश किया था INS एंट्री का, तो एसआरटी का देखिए, जो एसआरटी का रिस्पॉन्स है, एसआरटी का जो कॉन्सेप्ट है, उस कैंडिडेट्स ने भी यही बताया कि कंप्लीट करने पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। सेम आंचल ने भी यहाँ बताया कि इसने कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस किया। तो यहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। DIPR को भी पता है कि 60 एसआरटी आप नहीं कर सकते हैं, बट टाइम इवॉल्व करने के लिए, टाइम प्रेशर को इवॉल्व करने के लिए गाइडलाइंस में 60 एसआरटीज़ को लाया गया।
बट अगर आप 45 प्लस SRTs भी करते हैं और कंप्लीट करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को और अपने रिस्पॉन्स को प्रिसाइजली लिखते हैं, तो यहाँ आपकी जो SRT का रिस्पॉन्स है वो पैरामीटर में आता है। तो आपने कितनी SRTs कंप्लीट किए थे? एंड सेम WAT? So WAT I was able to complete all 60. ऑल 60। Yes. यहाँ WAT और SRT जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है साइकोलॉजी में, कैंडिडेट्स को जो नए देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि TAT इज़ अ मेन टेस्ट इन साइकोलॉजी। इन बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग WAT, SRT एंड HD को कन्फर्मेटरी टेस्ट माना गया है और 4 SRT एंड 4 WAT हर ऑफिसर लाइक क्वालिटी से उसमें हम प्लान करते हैं और वो कैंडिडेट से प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू एवेल्युएट करते हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपका क्या स्ट्रैटेजी था? सर सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो मुझे गाइडेंस मिली, मैंने अपना जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन था पहले खुद को एनालाइज करके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके सारी चीज़ें लिखी कि व्हाट इज़ माय पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन। इवन फॉर माय बेटरमेंट मैंने डायरेक्टली मेरे पेरेंट्स से भी पूछा कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन, मैंने टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन, फ्रेंड्स से पूछा। सो उससे मुझे क्लैरिटी मिली मेरे थॉट्स में कि मैं उनको कितना जानती हूँ कि वो मुझे कितना जानते हैं। सो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड लाइन, बट सर ये फैक्चुअल था, फैक्ट था। फिर मैंने जब वो चीज़ें सेंड की, मैंने उसका चाहा कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं, अपने लिए बेनिफिट देखा। तो वहाँ से जब आपने मुझे दिया कि हाँ उसमें चीज़ें सेम थी, बेस्ट थिंग था कि वो मेरी SD मेरी ही थी, बट उसे इम्प्रोवाइज़ क्या किया कि उसमें कुछ बेटर वर्ड्स एंड अच्छे से प्रेजेंटेबल ड्राफ्टिंग। यस सर, ड्राफ्टिंग सर वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में मुझे मिली और मैंने उसे अपना जो रियल तड़का लगा के मैंने उसे लिखा। यहाँ हम कैंडिडेट्स का जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है उसको ट्रेनिंग के लास्ट वीक में करते हैं, बिकॉज ट्रेनिंग में आने के बाद जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का कंटेंट है वो भी चेंज हो जाता है, बिकॉज PIQ में थोड़ा अल्ट्रेशन होता है। PIQ को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लाते हैं कि उस कैंडिडेट का प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, और वही प्रोजेक्शन हम सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में भी करते हैं। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का जो वर्क है ये हम सबसे लास्ट में करते हैं। यही रीज़न है कि इतने सारी भीड़ को हम नहीं पढ़ा पाते हैं और हम 20 कैंडिडेट्स को अपने SSB बैच में रखते हैं, बिकॉज 20 कैंडिडेट्स के साथ ही हम इंडिविजुअल गाइडेंस और पर्सनल स्ट्रैटेजी पे वर्क कर सकते हैं। आंचल, अभी मैं जानना चाहूँगा आपका इंटरव्यू में आप व्यूअर्स को ये शेयर करें कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस रैपिड फायर में थे और ऐसे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे वो क्या पूछे गए, PIQ बेस्ड था या कुछ अदर दैन PIQ था क्वेश्चन? सर मेरा इंटरव्यू इट वाज 90% PIQ बेस्ड, 95% वाज PIQ बेस्ड, और जो सोशल अवेयरनेस थोड़ी बहुत होती है सर, बाकी थोड़ी सी सोशल अवेयरनेस थी, बाकी 95% इट वाज PIQ। यहाँ आपके कितने मॉक इंटरव्यू हुए थे? सर यहाँ मेरे 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज हो चुके थे एंड ऑल वर ऑन PIQ बेस्ड। तो क्वेश्चंस मेरे लिए सिमिलर थे सर, ऑलमोस्ट सिमिलर थे। मुझे पता था कि ये क्वेश्चंस हैं मेरे लिए पूछे जाएंगे ही जाएंगे। सर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इतना एनालाइज करने लग जाते हैं कि एज एन इंटरव्यूअर आप किसी इंसान से कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सर कहीं ना कहीं उस तरीके से भी काफ़ी प्रैक्टिस आपकी हो गई थी ऑलरेडी और आप कॉन्फिडेंस हाई साथ गए थे। देन रोटी और क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस? सर वहाँ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है अबाउट योर फैमिली, कि फैमिली में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या, और अगर आप कुछ बोलते हो। सर एक जो मैंने कॉमन देखा, 2-3 मैंने इंटरव्यूज़ SSB में दिए और यहाँ इंटरव्यूज़ दिए, उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी कि फ्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो जिससे मैंने ये परसीव किया कि अल्टीमेटली हमें जाके रहना फ्रेंड्स के बीच में है, तो कहीं ना कहीं सोशल अडेप्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो सर मेरे लिए था कि आप फ्रेंड्स चुनने से पहले क्या क्वालिटीज़ आप उनमें देखते हो, तो उसका मैंने आंसर दिया दैट आई वॉन्ट कि दे आर ऑप्टिमिस्टिक और चेयरफुलनेस होनी चाहिए। एंड एक क्वेश्चन था कि आप किसी फ्रेंड से दूरियां क्यों बढ़ाते हो, लाइक कोई ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से आप थोड़ी सी डिस्टेंस कर लेते हो। तो मैंने आंसर किया बहुत लॉजिकल और बहुत पहले से एनालाइज किया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने बोला कि सर सिंपली अगर वो किसी इररिलेवेंट मैटर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो मुझे नहीं पसंद है, लाइक आप हंसो खुश रहो सही है, बट इररिलेवेंट मैटर्स में थोड़ा अवॉइड करें, अनलॉफुल डीड्स। यस सर, सो वो उस चीज़ को मैं अवॉइड करती हूँ। सो वैसे क्वेश्चंस थे एंड क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू माय फैमिली, माय स्टडीज़, कि हाँ कैसे क्या पढ़ा, प्लस मेरे ही लाइफ के अराउंड। सर जो कॉमन क्वेश्चन एक मैंने देखा था जहाँ से मेरी इंटरव्यू स्टार्ट होती है, दैट इज़ फ्रॉम माई इंजरी मार्क। आपके पास एक वो रहता है आइडेंटिफिकेशन मार्क का शीट रहती है SSB में, SSS सर के पास,
वो देखते हैं, बोलते हैं इंजरी मार्क ऑन माई रिस्ट, मेरी एक ये रिस्ट की इंजरी मार्क को मैं आइडेंटिफिकेशन मार्क में डालती हूँ, तो इसकी स्टोरी से ही स्टार्ट होती है मेरा इंटरव्यू। तो वो मुझे पता था कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे पूछना है। फिर वो मेरी और मेरे भाई की बॉन्डिंग, हमारे बीच में एज गैप इज़ जस्ट 2 years, तो हम दोनों की बॉन्डिंग प्लस मैं कितने रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए क्वेश्चन पूछे गए कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व होते हो, लाइक घर के आउटडोर जो काम होते हैं उसको कौन कौन से काम आप करते हो, करवाते हो, ये सारी चीज़ें, प्लस आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। कोई सर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए लाइक इंसिडेंट दीजिए आप, अगर आप बोलते हो कि आप हार्ड वर्किंग हो तो आप 2 इंसिडेंट बताइए कि जहाँ पे ये प्रूफ हो कि आप हार्ड वर्किंग हो। प्लस अगर आप बोलते हो लीडरशिप क्वालिटी है तो उन सब के इंसिडेंट्स मांगे जाते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रैपिड फायर राउंड, सर वहाँ स्टार्टिंग मेरी हुई थी स्कूलिंग से कि फ्रॉम वेयर डिड योर 10th 12th ग्रेजुएशन एंड विच टीचर यू लाइक द मोस्ट, विच टीचर यू हेट और डोंट लाइक। एंड उसके बाद सर सेकेंड कॉलम मेरे फ्रेंड्स के ऊपर था कि व्हाट आर द क्वालिटीज यू वांट इन योर फ्रेंड एंड हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। फिर सर जब ये ख़त्म होता है उसके बाद जो बेस्ट फ्रेंड का कॉलम छूटा था, वहाँ से सर मेरी फ्रेंड्स में गुजरा जाता है कि बेस्ट फ्रेंड जो है उसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़, कुछ बेकार क्वालिटीज़। एंड सर एक जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो लास्ट टाइम भी मेरे साथ एसएसबी में पूछा गया था एंड इस बार भी पूछा गया, दैट इज़ कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। जिसको स्ट्रेंथ बताना इज़ ईजी बट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना इज़ लिटिल बिट टिपिकल। वहाँ वो क्वेश्चंस थे एंड आई वाज एबल टू टैकल इट इजीली सर। दीज वर द क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। Okay, let me tell you that for women in trade, especially I have seen there are certain areas where SSB is giving more emphasis. Like number one, your emotional quotient. As compared to male, women and female candidate is comparatively emotionally weak. अगर मैं as a whole totality की बात करूँ तो यहाँ इमोशनल क्वेश्चन को चेक इसलिए होता है कि हम फौज में ऑफिसर कैडर पे जाने के बाद यू आर गोइंग टू गेट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा लीडरशिप एबिलिटी। वी आर स्टेइंग इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पे एज अ फीमेल कैंडिडेट उनको इतने मौके नहीं मिलते हैं कि वो लीडरशिप अपनी परफॉर्म कर पाएँ अपनी डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ एसएसबी में हम इनडायरेक्ट वे में ये भी चेक करते हैं इन डिटेल whether you are having leadership ability or not। अगर कम भी है तो क्या आपको मौके मिले तब आपने उसको यूटिलाइज किया या नहीं किया। यही रीज़न है कि पीआईक्यू में पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके टीएटी में आपने कितनी जगह इनिशिएटिव लिया और कहाँ आपने लीडरशिप लेके उसको टास्क को कंप्लीट किया, आपने कैप्टन का रोल लिया या जैसे आपने अभी बताया एज अ कैप्टन आप बास्केटबॉल टीम में थे। ये सब भी इनडायरेक्टली ये चेक होता है लीडरशिप उस एबिलिटी को लेके। And last is your confidence, because फीमेल कैंडिडेट स्पेशली यूपी, बिहार या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस जब वो बाहर जाते हैं, अभी 1 वीक पहले एक कैंडिडेट आई फ्रॉम एफ कैटेगरी, सी वॉज कॉन्फिडेंस आउट। जब उसने मुझसे शेयर किया तो उससे इंटरव्यू ऑफिसर ने एक क्वेश्चन पूछा कि वाई यू डिड नॉट कम अलोन टू अपीयर फॉर दिस SSB, आप अपने पेरेंट्स के साथ क्यों आए हैं, बिकॉज उनके फादर उनको लेके गए थे गांधीनगर में। तो ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं इसका समझना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी लीडरशिप एबिलिटी को और आपके इमोशनल क्वोशेंट को सबसे प्राइमरी लेवल पे असेस किया जा रहा है। स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर फीमेल वुमेन एंट्री, जितने वुमेन एंट्री कमीशनिंग के लिए कैंडिडेट्स जा रहे हैं, फौज इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, ये आपको पहले ही समझ लेना है। SSB इंटरव्यू में जब पर्सनल इंटरव्यू आपका हो गया, पर्सनल इंटरव्यू के बाद GTO राउंड में, बिकॉज इट इज़ 2 days प्रोसेस, GTO में आपको कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड जो डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स थे, उन ऑब्स्टिकल्स में आपने क्या देखा, आपका परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज किया, कैसे ग्रेड किया, एंड ग्रुप डिस्कशन में हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्लीज शेयर। Sir, first is group discussion. When your GTO days start, तो सबसे पहले से GD होता है, 2 GD, and sir in that जो planning, my planning is to give some valid points, some extraordinary points जो दूसरों के दिमाग में नहीं आ रहे हैं, and plus सबको सुनना, उसके बाद सर वहीं से points collect करके अपना analyze करके and then वापस से लेना।
एंड सर जो मेन चीज़ जीडी में मुझे लगता है कि इनिशिएट करना, वो सर आई वॉज द इनिशिएटर इन बोथ द जीडीज़। तो वहाँ मैंने इनिशिएट किया, जहाँ पे मुझे एक बेनिफिट मिलता है कि पहले मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ, वहाँ अपना पॉइंट भी देती हूँ। तो वहाँ मेरे पास पॉइंट्स और नंबर्स थोड़े से ज़्यादा रहते हैं कि मैं इतना बोल सकती हूँ, मेरे पास वैलिड पॉइंट्स हैं। वहाँ मैंने इनिशिएट किया, सबको सुना, काफ़ी वैलिड पॉइंट्स दिए। लाइक जहाँ मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज इससे ज़्यादा है, मैं इसमें इस चीज़ को कनेक्ट करके बोल सकती हूँ, तो मैंने सर वो भी किया। कि मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि चीज़ों को थोड़ा सा पॉलिटी से, क्योंकि जो आपके जीडी में टॉपिक्स होते हैं वो रिलेटेड टू ये पॉलिटी नॉर्मली जो चल रहा है, जो करंट अफेयर्स होता है उससे होते हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं से जनरल अवेयरनेस से या पॉलिटी से कनेक्ट करके मैं फिर उसको पॉइंट्स देती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसका स्टैंड अच्छा हो जाता है। तो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी इन जीडी। और मैं डोमिनेट करने पे बिलीव नहीं करती हूँ। लाइक अगर आपके पास पॉइंट्स है आप बोलो, फिर मेरे पास पॉइंट्स हैं तो मैं बोलती हूँ। तो हमारा पूरा ग्रुप सर इन दिस SSB पूरा ग्रुप काफ़ी सपोर्टिव था, सबने सबको मौका दिया एंड सबने बोला। तो ग्रुप जीडी डिपेंड करती है आपके ग्रुप पे, एंड अल्टीमेटली फॉर्चुनेटली हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था जो कि सपोर्टिव था। दैट्स द रीज़न कि हमारे ग्रुप में से सर आउट ऑफ 9 4 रिकमेंड हुए हैं। यस सर। एंड कमांड टास्क? एंड सर कमांड टास्क में इफ आई से सर मेरा इस बार भी बॉम्ब डिफ्यूजन था, एंड इवन लास्ट टाइम भोपाल में भी इट वॉज बॉम्ब डिफ्यूजन। बट इस बार जो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ आप प्रैक्टिकल अगर हो, नेचुरल हो, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है। अगर आप पढ़े पढ़ाए हो तो कहीं ना कहीं तो दिखता है कि आप पढ़े पढ़ाए हो। चीज़ें गाइडेंस लो, नेचुरल रहो, गाइडेंस लेके भी इंसान नेचुरल रहता है। मैंने वो किया सर, क्योंकि मुझे ड्यूरिंग माई कमांड टास्क मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि तुमको क्या दिख रहा है, बिकॉज आप जो बॉम्ब डिफ्यूजन होता है उसमें 2 सर्कल्स होते हैं, उसके बीच में एक कंटेनर रखा होता है। सर मुझे वो कंटेनर ही दिखा था, मुझे वो बॉम्ब दिखा नहीं। मैंने बोला सर इट्स अ कंटेनर दैट इज़ पेंटेड रेड। सो ही सेड, लिटरली सेड कि आज तक कभी किसी ने मुझे ऐसा आंसर नहीं दिया कि ये कंटेनर है, बिकॉज मैंने जिससे भी पूछा सबने बोला सर बॉम्ब। वो अपने फ्रेंड्स से पता कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉम्ब का एक्ट है। मैंने सर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि कुछ ऐसा चल रहा है, बट सर मुझे लगा वो बॉम्ब होगा तो कुछ बॉम्ब जैसा होगा, और वो मुझे सर वो नादानी में या बचपने में मुझे वो कंटेनर दिखा। वो प्रैक्टिकली मैंने बोला सर इफ़ यू वांट मी टू इमेजिन इट एज अ बॉम्ब देन आई इमेजिन इट, बट प्रैक्टिकली मुझे वो कंटेनर दिख रहा है। तो वहाँ उन्होंने वो अप्रिशिएट किया। प्लस जो सोल्यूशन की मैं बात करूँ तो सर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें जब आप देखते हो उन्हें अच्छे से एनालाइज जब करते हैं सर कहीं ना कहीं से सोल्यूशन दिखता है। और जब फट्टा या बल्ली प्लैंक और समथिंग आप उठा के जब कहीं फिट करने की कोशिश करते हैं, आपको सोल्यूशंस वहीं से मिल जाते हैं। मैंने सर वो कोशिश की। मैंने जो फर्स्ट ट्राई दिया अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर पे, सर्कल में सर 3 स्ट्रक्चर्स थे मेरे पास। फर्स्ट स्ट्रक्चर ट्राई किया, वो सर नहीं हुआ मुझसे। मैंने अपने आप को डिसहार्टन नहीं किया, मतलब फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द सेकंड स्ट्रक्चर। बहुत कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिवली मैं सेकंड स्ट्रक्चर पे गई। उसमें मैंने ईजिली प्लैंक फिट किया, सर वो सॉल्व किया। बट वहाँ मुझे GTO सर ने दे दिया पेनाल्टी कि आपका ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया। तो आई एम लेफ्ट विथ ओनली 2 स्ट्रक्चर्स। सो फिर मैं दूसरे स्ट्रक्चर पे गई, वहाँ भी मैंने यूज़ किया, प्लैंक डाला। देयर वाज अ कट जहाँ पे प्लैंक फिट हो जाती थी। वो सारे इतना आपको जब यहाँ पे गाइडेंस मिलती है तो इतना मिलता है कि हाँ कट है तो कोई ना कोई वजह से है। जब आप उसमें कुछ चीज़ें डालने के, प्लैंक या फट्टा बल्ली कुछ भी डालने की जब कोशिश करते हो तो वो फंसता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो रुक गया एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व इट। फिर उन्होंने मुझे फिर पेनल्टी दे दी कि अब ये रेड हो गया। देन आई वॉज लेफ्ट विद द 1 जिससे मैंने स्टार्ट किया था और जो मुझे सॉल्व नहीं हुआ था। बट वहाँ गए सर, वहाँ मैं सोल्यूशन मुझसे नहीं निकल रहा था। ही आस्क्ड मी कि अगर तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स के पास सोल्यूशन है तो यू कैन टेक। मैंने बहुत पॉजिटिवली फ्रेंड्स को बोला कि फ्रेंड्स इफ़ यू हैव सोल्यूशन देन यू कैन गिव मी। उन्होंने बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं। दे वर ऑल्सो नॉट श्योर, बट उन्होंने बोला कि वी कैन डू दिस। बोला ओके फ्रेंड्स विल डू दिस। फिर हमने ट्राई किया, थोड़ा सा वो अप एंड डाउन था बट उसको कर दिया। तो सर उसको हमने सोल्यूशन वहाँ निकाला। वहाँ फिर मुझे एक और पेनल्टी मिली सर। ओके। ये सर कि आपका जो छोटा प्लैंक है ये आपके पास नहीं है, उसको हटाया, सेकंड सोल्यूशन फिर उसी में दिया। तो इट वाज इजी। अगर आप काम रहते हैं तो इजी है, एक थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है सर। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में गर्ल्स के लिए सिर्फ 8 ऑब्स्टिकल्स होते हैं आउट ऑफ 10, बिकॉज 2 आर फॉर बॉयज़ ओनली। आउट ऑफ 8 आई वॉज एबल टू डू 7। जो एक मैं नहीं कर पाई आई वुड से कि उसका मतलब एनवायरनमेंट अभी उस वक्त सराउंडिंग ऐसी थी कि वो स्लिप हो रहा था, बीम बैलेंस वो स्लिप हो रहा था, जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे थे। दैट्स वाई मैंने 7 कर पाई थी एंड ऑन टाइम मैंने सारे कंप्लीट किए। भोपाल में आपने कितने किए थे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल? भोपाल में
थोड़ा सा डिफरेंस सर इलाहाबाद और भोपाल में क्या था इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, लाइक भोपाल में गर्ल्स के लिए 8 ऑब्स्टिकल हैं, बट इफ़ यू वांट टू डू रेस्ट टू यू कैन डू, बट यहाँ पे सारे के सारे मतलब लाइक वो हो गया, फॉरबिड हो गया कि आप करेंगे ही नहीं, आपको 8 ही करने हैं। वहाँ सर मैंने 9 किए थे, 8 जो गर्ल्स के लिए होता है वो प्लस टाइगर लीव जो बॉयज़ के लिए होता है, तो वो मैंने किया था, वहाँ 9 किए थे, यहाँ 7। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। इस तरीके से आपने दैट यू हैव गॉट टू नो दिस यूनिक सक्सेस स्टोरी वेयर सी क्रैक्ड SSB twice. To crack SSB, one must be psychologically, mentally, emotionally and physically balanced individual. Heartiest congratulations once again for this grand success. And by this way you are giving good motivation to many SSB aspirants, especially for women entry and NCC special entry. Thank you sir. Through this video, you must have observed how Archer, through her hard work and determined efforts, was able to qualify both the SSBs back to back, that is NCC Special Entry 46 and NCC Special Entry 47. Determined efforts lead to desired results. This is what she believed in and this is what she was continuously practicing in her life to achieve her aim. Here at Centurion Defence Academy, we are there to fulfill your dreams to make them come true. Shishir sir, par excellency, SSB psychology expert, is always there to render his support to all the aspirants who are there in the academy to help them to qualify their SSB. Recently, on 10th of January, his article was published in Business News World on SSB tips and tricks, for which we have received lots of comments, messages, emails from all over India from the students who are getting benefit by reading that article. We will be sharing the link of the same article in the description box below. You can refer to the article and get a huge amount of knowledge from the same. In a very precise manner, Sir has described how one can excel in this 5-day procedure and get success in his or her SSB. If you want to make sure that your strategy is up to the mark, if you want proper assessment of your personality, if you are serious for your dreams and if you want the right guidance, you can contact us at the numbers given below. We will be ready to help you out in every possible method. If you are viewing this channel for the first time, you may please subscribe to the channel, like the video and share it with your friends. Jai Hind.